Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. My name is Hifza. I'm the teacher of TKS Senior Campus. Okay, so students, today is Friday. Friday is a blessed day. Try to recite the Durood Sharif as much as you can. Okay, before moving towards the lecture, I want to share a good message with you. So today's good message is, I wish Allah will keep you in His loving care now and forever. Okay students, now take out your English course book on page number 21. Yes, all of you take out your book on page number 21. Hurry up, I'm taking your attendance. All of you turn on your video. I'm calling your names. Listen to your names carefully. Okay, Hamna Hafsa, turn on the video. Khatija Osman, Muazzam Sethi, Sohail, and 1, 2, 3, 4. Turn on your video. Hurry up. Hamna Hafsa, Muazzam Sethi. Okay, on page 21. Can you see this sign? यहाँ तक हमने पढ़ा था. So today we will start from this line. Okay, hurry up. Turn on your video. Show me your books. Yes, Khatija Osman, where is your book? Hold on your pencil. Hamna Hafsa, good. Sohail, good. Okay, who is left? Yes, Muazzam Sethi. Bache, you are left. Hurry up. Turn on your video. Okay, hold on your pencils. Okay, now focus on page 21. Okay, she shouted. Bordwell at first thought there were burglars in his house, but finally he quietened down and called the police for us over an extension phone by his bed. Okay, who was Bordwell? Bordwell कौन था? Yes, who will tell me who was Bordwell? Yes, Hamna Hafsa. Bache, tell me. Hafsa Umar. Okay, you wanna tell? Yes, Hafsa Umar. Ma'am, he was her neighbor. Yes, good. Okay, he was one of his neighbors. ठीक है, उनका neighbor था. और यहाँ पे आपके पास पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा this man name is Bordwell. Okay, so what happened to the lady? She was standing in his neighbor's house. क्या हुआ था कल? Yes, Hashir, you wanna tell? थोड़ा सा ज़रा briefly बताएं मुझे. Unmute your mic, Hashir. जी हाशिर बच्चे, थोड़ा सा ब्रीफ बताएं कि क्या हुआ था. Why they were standing at their neighbor's house? वहाँ पे क्यों खड़े थे? किस चीज़ के लिए आए थे? यस हाशिर, थोड़ा सा लाउड बोले. Okay, good. Yes, the lady was standing in front of her neighbor's house. Okay, और आपको उसके हाथ में एक जूता नज़र आ रहा है. ठीक है, so she throw this shoe at the window. आपको विंडो पे ये क्रैक नज़र आ रहा है. So the window were separated into pieces. अब क्या हुआ? फाइनली फर्स्ट दिस मैन थॉट, मैंने आपको बताया था अब रात के 2 बजे आप किसी के घर जाओ, वो भी उनकी जो विंडो है मतलब वो तोड़ के आप जाओ, अंदर घुस के जाओ, तो जाहिर सी बात है दे विल थिंक कि कोई चोर आ गया या मे बी कौन है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस मैन वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि बर्गलर्स मैंने आपको मीनिंग बताया था रॉबर्स या फिर चोर जिसको कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट ही थॉट कि ये जो है चोर आ गए हमारे घर में, बट देन व्हेन ही रियलाइज के ओके यू आर सीकिंग फॉर आवर हेल्प, तो फिर उसने क्या किया, थ्रू एन एक्सटेंशन फ़ोन मीन्स उनके घर में जो फ़ोन था उसके बेड के साइड पे
एक्सटेंशन फ़ोन उसे कहते हैं जिसके साथ वायर होती हैं, ठीक है, जो आप लोग के घरों में भी होते हैं, पीटी सेल वाले फ़ोन। तो उस फ़ोन से जो है क्या हुआ, उन्होंने कॉल की पुलिस को। लेट्स फाइंड कि क्या हुआ। आफ्टर ही हैड disappeared from the window, mother suddenly made as if to throw another shoe because the thrill of throwing a shoe through a window pane attracted her. I prevented her from doing so. Okay, so this man helped them, ठीक है। ये जो आदमी था इसने पुलिस को फ़ोन कर लिया एंड उसके बाद उसका काम ख़त्म, ही ऑल गॉन, ही गो टू अगेन गो टू स्लीप, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, द ऑथर इज सेइंग कि उसके बाद जो मेरी मदर है वो अनदर दूसरा जो जूता है वो उठा के दोबारा से यहाँ फेंकने वाली थी, बिकॉज द थ्रिल ऑफ थ्रोइंग अ शू। थ्रिल कहते हैं जिसमें आपको मतलब आपको अब फॉर एग्जांपल एक काम में मज़ा आए, ठीक है। तो थ्रिल का यहाँ मतलब है एक्साइटमेंट, ओके, एक्साइटमेंट यानी जोश। उसकी जो मदर थी एक दफ़ा जूता फेंकने से उनको मज़ा आ गया था, वो जोश में आ गई थी, सो वो अब दोबारा ये हरकत करने वाली थी। बट द ऑथर इज सेइंग आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम डूइंग सो, ठीक है। प्रिवेंटेड का भी मतलब लिखे, उसका मतलब है टू स्टॉप। ऑथर इज सेइंग कि फिर मैंने उनको जल्दी से रोक दिया कि नो प्लीज़ आप दोबारा ये हरकत मत करें, ठीक है। उसकी मदर जो थी वो एक दफ़ा जूता जो उन्होंने फेंका तो नाउ फॉर द सेक ऑफ एक्साइटमेंट की खातिर वो जो है दोबारा से ही हरकत करने वाली थी। बट द ऑथर सेज दैट आई प्रिवेंटेड हर, आई स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सो, ओके। प्रिवेंटेड मीन्स टू स्टॉप, ओके। The police were there in a very short time. They began banging at our front door. Open up, cried a hoarse voice. We are men from headquarters. I want to go down and let them in, but mother didn't let me. Okay, अब आपको मैंने अभी बताया कि जो बॉडवेल था, जो उनका नेबर था, he called the police and the police were soon there, ठीक है। They were in a short time they reached there. उनके घर के दरवाजे पे खड़े होके, बैंगिंग का मतलब है टू टॉक कॉन्टीन्यूसली, बार बार कहना। आपने अब जाहिर सी बात है पुलिस आई, ठीक है, तो होर्स वॉइस का मतलब है द्रष्ट आवाज़, यानी गुस्से वाली जो आवाज़ होती है, ठीक है। गुस्से वाली आवाज़ में वो कॉन्टीन्यूसली बार बार कह रहे थे कि ओपन अप द डोर, ओके। द पुलिस वर देयर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और वो जो है गुस्से वाली आवाज़ से, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस है, ओके, सो दे मस्ट इन्वेस्टिगेट कि हुआ क्या, किसी को नुकसान ना हो। सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपने गुस्से वाली दृष्ट आवाज़ में बार बार कॉन्टीन्यूसली नॉक कर रहे थे डोर पे, एंड दे वर सेइंग दैट ओपन अप द डोर, ओके। वी आर मैन फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, आई वॉन्टेड टू गो डाउन एंड लेट देम इन। द ऑथर इज सेइंग कि वो बार बार कह रहे थे कि वी आर पुलिस, ओके, वी आर फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, यानी हम जो है पुलिस स्टेशन से वहाँ से आए हैं, प्लीज़ ओपन अप द डोर। और ऑथर इज सेइंग कि मैं जाना चाहता था कि मैं दरवाज़ा खोलूँ, बट माई मदर डिडंट लेट मी डू सो, ठीक है, मेरी मदर ने मुझे नहीं जाने दिया। फाइनली दे ब्रोक ओपन द डोर एंड केम इन। जाहिर सी बात है अब पुलिस को बुलाया गया है, सो दे वर लाइक थिंकिंग कि हो सकता है कि किसी ट्रबल में हो, तो उन्होंने दरवाज़ा ही तोड़ दिया और वो घुस के अंदर आ गए। Seeing me standing in a towel at the top of stairs, a heavy policeman came up and asked, "Who are you?" "I live here," I said. अब जाहिर सी बात है जो ऑथर था, आपको पता है ना, ही केम फ्रॉम द बाथटब, ठीक है, वो बस शावर लेकर ही आया था और ही वॉज जस्ट हैविंग द टॉवल अराउंड हिज वेस्ट। उसने जो है कपड़े नहीं पहने हुए थे, ही वॉज जस्ट वेयरिंग दैट टॉवल जब से ये वाक़या शुरू हुआ था, ठीक है। सो जब पुलिस अंदर घुस के आई दरवाज़ा तोड़ के, सो उन्होंने सबसे पहले ये इस ऑथर से पूछा कि हु आर यू। द ऑथर सेज आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, ओके। द ऑफिसर इन चार्ज रिपोर्टेड टू माई मदर, नो साइन ऑफ एनी बडी लेडी, ही सैड मस्ट हैव गॉट अवे, व्हाट डिड ही लुक लाइक। ऑफिसर जो था, पुलिस वाला जो था, ऑफिसर जो उनका था, उसने बोला मेरी मदर को कि नो साइन ऑफ समवन, ठीक है, यहाँ पर तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई आया था, तो ही मस्ट हैव गॉट अवे का मतलब कि मे बी वो जा चुके हों, ठीक है। व्हाट डिड ही लुक लाइक, वो कैसे उनको लगा कि शायद हमने देखा हो, तो इसलिए उन्होंने पूछा ऑथर से और उसकी मदर से कि व्हाट डिड ही लुक लाइक, वो दिखने में कैसे थे। देयर वर 2 or 3 of them, mother said, whooping and carrying on and slamming doors. Whooping means
आपके पास यहाँ लिखा हुआ है येलो बॉक्स में शाउटिंग एक्साइटेडली। अब उसकी मदर देखें खुद से कह रही है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, फुट स्टेप से लग रहा था कि लोग ज़्यादा है, बट कंफर्म बात नहीं थी। स्टिल उसकी मदर ने एक्साइटेडली शाउटेडली बोला कि देयर वर 2 or 3 ऑफ देम, यानी कि 2 से 3 बंदे थे, ठीक है, 2 से 3 आदमी थे। नाउ कम टू वर्स पेज नंबर 22, हरी अप। फनी सैड द कॉप्स, ओके, कॉप्स कहते हैं पुलिस को, ठीक है, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कॉप्स। कॉप्स मीन्स पुलिस, कॉप्स पुलिस, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कॉप्स। Okay. All your doors and windows were locked on the inside. Downstairs we could hear the tramping of the police. They were all over the place. Doors were yanked open, drawers were yanked open, windows were shot up and pulled down. Furniture fell with dull thumps. Okay, अब इसमें बहुत सारे मीनिंग्स है, ठीक है, आपने लिखने हैं, बट पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा दूँ। आपके पास क्या कह रहे पुलिस मैन जो थे वो अब जो तो कॉप्स थे जिसको पुलिस कहते हैं, ठीक है, दे सेड इट्स फनी, कि मतलब अजीब सी बात है कि आपके घर में दरवाजे सारे अंदर से बंद है, दरवाज़ा खुला कोई नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अंदर घर में कोई घुस के आया, वो भी 2 से 3 बंदे, जब आपके घर के दरवाजे ही पहले से लॉक्ड हैं। ओके, उसके बाद पुलिस वालों ने, जैसे आपने कभी पुलिस को तफ्तीश जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखा होगा, वो क्या करते हैं, उन्होंने पूरा फर्नीचर इनका ज़मीन पे गिरा के चेक किया। दे ओपन ऑल द ड्रॉर्स, ऑल द विंडोज़, इवन ऑल द कबर्ड्स, सब कुछ खोल खोल के वो चेक कर रहे थे, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे मैं मीनिंग्स बता रही हूँ, इसको लिखें। ट्रैम्पिंग, सबसे पहले यहाँ नज़र आ रहा है, वी हेयर द ट्रैम्पिंग ऑफ द पुलिस। ट्रैम्पिंग मतलब चलना, ओके, जो पुलिस जो थी उनके चलना, वो कैसे वॉक कर रहे थे वो हम सुन सकते थे। ओके, ये कौन कह रहा है, द ऑथर इज सेइंग कि माई मदर एंड आई हर्ड द ट्रैम्पिंग ऑफ द पुलिस। हम जो है पुलिस के चलने की आवाज़ें हमें आ रही थी, ठीक है। राइट डाउन द मीनिंग, ट्रैम्पिंग, टू वॉक, चलना। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या मीनिंग है यहाँ पे, यांक्ड। यांक जो है खींचने को कहते हैं। आप देखिए, अब ड्रॉर्स थे, कबर्ड्स थे, तो उनके जो डोर्स थे ना उनको खोला गया, लेकिन पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो फिर आराम से खोलना एक इज समथिंग एल्स। लेकिन वो जब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है सो दे जस्ट पुल्ड, खींचना, ठीक है। यांक्ड का मतलब लिखे खींचना। ओके, सो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, सो द ऑथर इज सेइंग वी हर्ड द ट्रैम्पिंग ऑफ द पुलिस। हमें उनके चलने की, तेज तेज चलने की आवाज़ें आ रही थी, किसकी, पुलिस की। यांक्ड का मतलब है खींचना। नाउ थम्स, थम्स का मतलब है आपके पास हिट विद स्टिक। आपने पुलिस वालों के हाथ में कभी स्टिक देखी है, जो स्टिक होती है, ठीक है, दे यूज़ इट फॉर हिटिंग, ठीक है, किसी चीज़ को मारना, उसके लिए वो स्टिक यूज़ करते हैं। तो वो पुलिस मैन जो थे वो अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हर जगह स्टिक्स यूज़ कर रहे थे, हर जगह इवन के चीज़ें इधर उधर फेंक रहे थे, फर्नीचर उनका सारा इधर उधर हो गया था। ड्रॉर्स जो थे, जो दराजें थी, जो अलमारियाँ थी, सब कुछ उन्होंने खोल के चेक किया कि मे बी यहाँ पर कुछ हो, बट देयर वर नो क्लू, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा सच क्लू नहीं था। ओके, half a dozen policemen emerged out of the darkness of the front hallway upstairs. They began to ransack the floor, pulled beds away from the walls, tore clothes off hooks in the cupboards, pulled suitcases and boxes off shelves. Then finally the one who had spoken to my mother said, no sign of anything. अच्छा, आपके पास इमर्ज्ड का मतलब है उभरना, विजिबल। ओके, पुलिसमैन इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द डार्कनेस का मतलब है उनके घर में तो अंधेरा था, ठीक है, सारी लाइट्स ऑन नहीं थी, तो पुलिसमैन जो अंधेरे में लगा हुआ था, सारी चीज़ें वो टॉर्च के थ्रू वो देख रहे थे सब कुछ। सो इमर्ज्ड का मतलब है विजिबल, उभरना। तो फौरन जो है डार्कनेस से वो लाइट में आ गया। तो ऑथर इज सेइंग आई सी द पुलिसमैन, ठीक है, द पुलिसमैन इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द रूम। किसी भी रूम से वो जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो वो वहाँ से
विजिबल नज़र आया। फिर रैंसैक का मतलब है टू सर्च, ढूंढना, मतलब इन्वेस्टिगेशन वो हर प्रॉपर तरीके से वो कर रहे थे। उन्होंने इवन के जो इनके कबर्ड्स में कपड़े थे उनको भी देखा, सब कुछ देखा, बट देयर वर नो क्लू, ठीक है। और एंड में क्या हुआ, जो पुलिसमैन जिसने इसकी मदर से स्टार्ट में बोला था कि यहाँ पर एज सच घूस या फिर चोर का कोई निशान नहीं है, तो उसने एंड में भी यही बोला, नो साइन ऑफ एनीथिंग। जस्ट देन इन द स्मॉल साइलेंस वी ऑल हर्ड अ क्रीकिंग। क्रीकिंग का मतलब आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द साउंड मेड बाय द ग्रैंडफादर्स बेड। अच्छा, क्रीकिंग कहते हैं साउंड को, आवाज़ को। सो यहाँ पर किस चीज़ की आवाज़ उनको सुनाई दी एकदम से? जो ग्रैंडफादर, मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि ही वॉज स्लीपिंग इन द वॉलनट बेड, ठीक है, इन द एटिक। एटिक मतलब ओल्ड रूम, जो पुराने कमरे होते हैं, उसमें वो सोया हुआ था और एकदम से उसके बेड की आवाज़ आई, बड़ी अजीब सी आवाज़। ग्रैंडफादर वॉज टर्निंग ओवर इन द बेड, वो सिर्फ करवट ले रहे थे, बट मैंने आपको बताया था वो बेड अच्छा खासा पुराना हो गया था, तो उसकी इतनी लाउड आवाज़ होती थी कि वो हर कोई सुन सकता था। What's that? Snapped a policeman. 5 or 6 cops sprang to the attic before I could stop them or explain. Author is saying कि इससे पहले कि मैं उनको कुछ बताता और एक्सप्लेन करता, they all ran towards the room जहाँ से आवाज़ आई। तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर लें, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लें। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। तो मैं अब आपको ज़रा ये बता दूँ कि आपका जो है, आपने करना क्या है, यू हैव एन असाइनमेंट, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट। आपके पास वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट है आपके पास, जिसको कलेक्ट करने के लिए आपके घर में से आपके पेरेंट्स ने आना है, बट पेरेंट्स में भी एक मेंबर ने आना है, ओके। और आपके पास टाइमिंग्स क्या है असाइनमेंट कलेक्ट करने की? आपके पास टाइमिंग्स है फ्रॉम 10 o'clock to 1 o'clock। आप सुबह के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक के दरमियान में आप में से आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक बंदा आ सकता है आपका वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट लेने के लिए, ठीक है। और आपने ये मस्ट लेना है, कल सैटरडे है, कल आपने अपने पेरेंट्स को आज बता दें, और आपने कल अपने पेरेंट्स में से किसी एक को जूनियर कैंपस भेजना है। जूनियर कैंपस आपको पता है ना किधर है? ये जो जानस आर्केड है, ठीक है, इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे यहाँ पे है जूनियर कैंपस। अपने पेरेंट्स से आप कह दें कि आपने आना है और आपका असाइनमेंट लेके जाना है। इज़ दैट क्लियर टू यू? ओके बच्चे, अब मुझे बता दें अभी तक जितना मैंने पढ़ाया इसमें कोई कन्फ्यूजन है? इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है। टुमारो वी विल, सॉरी टुमारो नहीं, ऑन मंडे इंशाल्लाह वी विल start from this paragraph and we will try to end this. Yes, any question, any confusion in this lecture? Okay, the story is boring or interesting, कौन बताएगा? बच्चे इसको अच्छे से रीड करें because I will ask questions, okay, in my next lecture. ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आपने अब असाइनमेंट लेने आना है, ओके, रिमेंबर द थिंग, ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।